Assalamu alaikum ji. Welcome back to another episode of Kya Kaya Kazi. My guests today were the Baloch twins. Assalamu alaikum kar sakte hain aap log? Hey, sync mein ye bhi. We get to speaking about what drives their music, about their brought up, how they were brought up, the textures of different languages, on what inculcates their art, their music, their filmmaking, on how they think music in Urdu but film in Balochi. Huh? Yeah, that's right. Anything else? Kuch maine miss kiya? No, More or yeah, less. I believe Yeah, we're good. We're sorted. Also a lot of philosophy, I believe. A lot of philosophy, and also on how they believe that art, really performing any art, is going through the process. And if you don't go through the process, That's not there's no art. Yeah. There's no art. Enjoy. Three, two, one. Baloch twins. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं boys? ठीक ठाक, फिर आप कैसे हैं? Alhamdulillah bro. Alhamdulillah. So you were telling me कि भाई जो हैं आपसे बड़े आप बड़े हो ज़्यादा, Yes, जी 10 मिनट। टॉल भी हैं और उनकी आवाज़ भी ज़्यादा, जी ज़्यादा गूंजती है। and जितना मुझे पता है सिंगिंग के बारे में, that gives you greater diversity. Yeah, I think, no है ना? doubt, no doubt. You can like cover more. Yeah, actually. Yeah. And there are certain tonalities. हाँ. So that's always beneficial for you. Yeah. और आप लोग ये भी बता रहे थे कि you guys try to sing, not just learn as many languages as you can, but you also try to sing in as many. Yeah. अच्छा, इनको माइक्स को थोड़ा और करीब कर लेंगे. That's what we try to do. हाँ, Yeah. just pull it back. Yeah, Okay. हाँ. What were you saying? You were saying कि you try to learn as many languages and then sing in them. Yeah. We try to our best. Yeah. we हाँ. try to. So how many languages can you sing in? Well, I believe right now we can sing in 6 to 7 languages. 6 to 7 languages. Yeah, for sure. And how are you good in 6 to 7 languages? Fluently जो है, not in terms of speaking, yeah, you can say, but 4 से 5 ज़बान जो है हम सही बोल लेते हैं, लेकिन like we sing in Bangla as well, लेकिन बांग्ला हमें फुल आती नहीं है. हाँ. तो इस तरह से है, अगर कोई गाना सुन लेते हैं उसके डायलेक्ट पे थोड़ा नोट करते हैं, and the expression, that's how we try to do. That's interesting. Okay, so कितनी ज़बानों में आप मुझे ये बोल सकते हो कि यार हम प्रॉपर गाना गा सकते हैं? प्रॉपर मतलब 4 ज़बानों में. प्रॉपर 4. कौन सी? Obviously पहले बलूची, हाँ, उर्दू, हाँ, इंग्लिश और पंजाबी. That's cool. So are there differences? We were talking about this before. Are there differences in how you would say how would you are there differences in how you would sing in Punjabi versus Balochi? Are there? Yeah, I believe there are differences. अगर हम उनके existence पे बात करें कि हर एक ज़ुबान की एक अपनी कैफियत है, एक वजूद है. हाँ, notes तो definitely notes are the same, music is the same, but how you project it and how you inhale it, that's pretty some different stuff. तो ये कि जैसे अब बलूची है, उसका एक अलग एम्बियंस है, उसकी एक अलग अदायगी है, उसमें एक्सप्रेशन एक अलग है. अब पंजाबी जैसे ज़ुबान है वो बोलने में डिफरेंट है, लेकिन गाने में बिल्कुल डिफरेंट है. वो इट साउंड्स रियली डिफरेंट देन हाउ यू एक्चुअली स्पीक इट. तो ये है कि हर ज़ुबान की एक अपनी कैफियत है, एक अपनी आई बिलीव एक एग्जिस्टेंस, खूबसूरती है एक्चुअली, नेचर, खूबसूरती है, नेचर है, अपनी एक नेचर है. बलोची की नेचर क्या है? वेल, बलूची को अगर देखा जाए तो इट्स जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने और ये ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए सेम हो. ये यूनिवर्सल है ही नहीं. ये मेरे लिए अलग है, आसिम के लिए अलग एक्सपीरियंस हो सकता है और आपके लिए अलग. बलूची का मेरे मुताबिक ये है कि एक जो वेवलेंथ होती है, अगर एक वेव होती है, बलूची में वो इफेक्ट आपको दिखेगा कि आपको एक जो है भारीपन भी आपको महसूस होगी, और एक जो स्लाइड सी जो एक हल्की कैफियत है वो भी आपको महसूस होगी. सही. तो इसमें मद्दो जज़र ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको दिखेंगे बलूची में. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट जितने भी बलूची सिंगर्स से जो भी थे, आई हैव सीन कि वो ज़्यादा वो पंची साउंड को ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं. पंची साउंड जो है गाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ये मैंने नोट किया, चूँकि ये शायद ये वजह हो सकती है कि वी आर फ्रॉम माउंटेन्स एंड नोमैड्स, सो दैट माइट बी द रीजन कि वो थ्रो ही उस टाइप की चाहिए होती है कि यू नीड टू सिंग लाउडर, यू नीड टू, that's powerful, right? That's beautiful, man. And that's so interesting क्योंकि if you would have asked me, like I've told you, I am only a consumer of music. I don't perform or anything. Lekin I would have said it
I would have said that in a different way क्योंकि I've always thought कि Balochi is a tough language, right? But how can a language be tough? Yeah, that's not tough to learn. Yeah. It's just a brave and tough language, Yeah, yeah. right? And one would think कि अगर आप गाओगे तो मतलब गाने में भी फिर वही चीज़ सामने आएगी. बिल्कुल बिल्कुल. It's the same as एक मतलब I don't know इस टेबल का टेक्सचर जो है Yeah, इसी तरीके से उस जबान का टेक्सचर जो है exactly. थोड़ा टफ है, बिल्कुल. थोड़ा ब्रेव है. एंड दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. वो ये कि डिफरेंट जो रेंजेस है बलूचिस्तान के, डिफरेंट जो इलाके हैं उनकी एक अलग अलग एक नेचर है. बिल्कुल होगी. लाइक अगर हम मकरान की बात करें तो उसकी एक फ़ील अलग है, और अगर हम कोहे सुलेमान बेल्ट लाइक उस तरफ चले जाएं तो उसकी एक फ़ील अलग है. वहाँ एक बलूची वोकलिस्ट बहुत बड़े अजीम वोकलिस्ट रह चुके हैं, सर मुरीद बुलेदी. तो अगर आप उनका गाना सुनेंगे वो एकदम डिफरेंट साउंड करेगा. उसमें पिच थोड़ी इतनी उसमें वाइब्राटो इतना होता नहीं, और उसमें जो है एक वो बेसीनेस आपको दिखेगी, वो बेस नहीं दिखेगा. उसमें थोड़ी मिड ऑक्टेव्स में ज़्यादा आपको या ऊपर ही दिखेगा या सॉफ्टनेस दिखेगी. लेकिन फिर थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे और नड़ सुर की बात करेंगे. बिल्कुल. तो वो बहुत ज़्यादा वो सिर्फ है बेस पे है. वो बेस पे वो नन्ना ने नन्ना ने दान 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 ये आई गेस यू हैव लिसन. सो वो बिल्कुल अलग टेस्ट है. सो इट डिपेंड्स ऑन अ डायलेक्ट एक्चुअली, व्हिच डायलेक्ट यू आर फ्रॉम, व्हिच रीजन यू आर फ्रॉम. सो उसी के हिसाब से आई गेस इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इमेजिन देन कि आपकी जो पुश्ते हैं या आपके जो हेरिटेज है, इफ यू आर true to your craft, that speaks through you. It does. Isn't that a beautiful thing? So क्या है कि जो बलोची वोकलिस्ट होते हैं ना, my family हम जब so we have this thing where we sit together, Coke Studio especially, but जो भी ये जो बड़े shows होते हैं जहाँ पे audio भी अच्छी है, so we'll sit and we'll listen to these songs together, right? And my siblings will often remark कि ये बंदा, it's a colloquial way of saying this, but वो ऐसा बोलेंगे यार ये बंदा ऐसा लग रहा है कि इसकी आवाज़ पहाड़ों से आ रही है, राइट? तो वो एक तरीके से क्योंकि वो बंदा ही पहाड़ों से है, उसकी हेरिटेज पहाड़ों से है, तो वो आवाज़ भी वहीं से आ रही है. That's powerful ना. अच्छा चलो, so then that is the nature of Balochi. पंजाबी in comparison कैसी? अच्छा, पंजाबी जब कोई बोलता है तो वो मुझे थोड़ी वो कंपैरेटिवली जब आप उसको गाएं तो वो थोड़ी एक हार्शनेस उसमें आपको दिखेगी, एक हैमरिंग वाली जो कैफियत है वो आपको दिखेगी. लेकिन जब आप गाएंगे तो उसमें एक रेजोनेंस आती है. ये दैट्स समथिंग आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, जो मैं कभी फिगर आउट नहीं कर पाऊँ कि ये क्या. जब आप गाते हैं उसमें एक वो रिवर वाली कैफियत आ जाती है. उसमें एक मेलो चीज़ जो आप कहते हैं ना, कोई मेलो चीज़ जो साउंड करती है, काफ़ी मेलोडियस होती है. तो पंजाबी ज़ुबान गाते वक्त उस तरह होती है और बात करते वक्त काफ़ी डिफरेंट होती है. तो पंजाबी जो लोग थे या पंजाब जो जनरली हैव बीन वॉरियर्स, यस, बट देव बीन फार्मर्स, they've been agriculture में ना. तो अब अगर ये देखिए हम जो है ना यहाँ पे जो है ना बैठ के हम सेंस कर रहे हैं हम सोचा हमें कोई नो वन ब्रो, हमने अपने आप को ये अथॉरिटी दी हुई है, अल्लाह रहम करेगा. तो if you think about where the Punjabi language or where the Punjabi people come from, mostly farmlands, mostly agriculture, right? And then if they have needed to fight, they fought, right? But that's not their primary thing. Is always prosperity. That's right. कारोबार करें, काम करें, तिजारत करें, right? So where there's bravery and a certain kind of hardness to the Balochi language because of the region. मतलब पहाड़ों में ना आसान नहीं होता, bro. मुझे नहीं पता, लेकिन आसान नहीं होता मेरे ख्याल में. The Punjabi language then I suppose would be a little more free flowing and a little more abundant. क्योंकि उनके पास तिजारत है तो उनके पास था. आप क्या बोलते हो? ये कह सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि शायद हो सकता है कि किसी और को किसी अलग तरह से लगे. लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं ना ब्रो, हम अपनी बात कर रहे हैं. मैंने जो नोट किया है, वो जो जितने भी वोकलिस्ट दो फ्रेंड्स वगैरह मिले, तो सीन के वो ऊपर ज़्यादा गाते हैं. ऊपर मतलब मिड ऑक्टेव या उससे ऊपर, अपर ऑक्टेव में गाते हैं. सुर मतलब एक कोई नीचे गाता है, जैसे बेस गाते हैं आप, बेसिक वो ऊपर पे गाते हैं. ऊपर गाते, ये समझ रहे हैं? हाँ. जैसे खान साहब, नुसरत अली खान साहब हैं, हाँ, वो ऊपर गाते थे. हाँ. या वहाँ पे हमारे जितने भी शायद नुसरत हैं वो भी ऊपर गाते हैं. और डिफरेंट वहाँ पे जितने वोकलिस्ट हैं, हमने ये नोट किया, मैंने यही नोट किया कि वो ज़्यादातर जो अपर ऑक्टेव्स पे गाते हैं.
तो ये मैं उनकी नेचर है आई बिलीव, या उन लोगों की शायद उसमें वो एज वी सेड के वो चीज़ या वो टेक्सचर जो एग्जिस्ट करता है जो हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करता है, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं इसी तरह से. सही, दैट्स ब्यूटीफुल मैन. व्हाट्स इट कॉल्ड, व्हिच लैंग्वेज, थोड़ा सा बायस होगा ज़रूर क्योंकि यू नो बलोची वाज योर फर्स्ट लैंग्वेज, व्हिच लैंग्वेज डू यू प्रेफर सिंगिंग इन? प्रेफर सिंगिंग इन, हाँ, वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट जो सबसे ज़्यादा मुझे ज़ुबान पसंद है वो फ़ारसी है, पर्शियन है. बिल्कुल फारसी. या वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न इट एज वेल. तो हमारा एक गोल ये है कि 22 में हमें वो ज़ुबान सीखनी है. एक साल में कैसे सीखोगे? मतलब स्टार्ट लर्निंग इट, यू नो. एंड वी कैन क्योंकि बलोची और फारसी काफ़ी समझ लें भाई हैं. राइट. तो उनमें इतनी ज़्यादा बलूचिस्तान और वो ईरान मिलते हैं, तो उसमें लाइक हमारी काउंटिंग उनकी काउंटिंग भी सेम है. जो हम कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल वी अगर कोई कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वी से तो कुजा रहोगे बलूची में, और फारसी में कहते हैं तो कुजा मेरे. तो दीज आर द थिंग्स. वो कहते हैं कि हम कहते हैं ती तबीयत चोन है, ती हाल चोन है, वो कहते हैं हालत चितौर है, चितौरा. दीज आर सिमिलर और काउंटिंग्स भी सेम है, 1 2 से 4 5 6 शब्द. तो वी आर मतलब उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं. चलो आप लोग फिर सीख लोगे. मैं अपने आप को रख के बोल रहा था कि यार फारसी कैसे आएगी मुझे, तो मुझे नहीं आएगी. सही है, आ सकती है. उर्दू अगर आपको आती है तो फारसी भी आ जाएगी. वो भी उर्दू मुझे इतनी आती है जितनी आप सुन रहे हैं. अल्लाह रहम करे. आप और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खींच रहा हूँ अपनी उर्दू, आप लोग लेकिन जो अल्लाह रहम करेगा ब्रो. ऐसे हम भी जनाब उर्दू दान नहीं ब्रो. देखो आई थिंक हियर्स द थिंग, राइट. आई थिंक दीज आर टूल्स फॉर कम्युनिकेशन. आई थिंक जिस वक्त आप इसको जो है ना, दो चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं कर, मेरे नज़दीक बहुत गैर मुनासिब होती हैं. एक, व्हेन यू बिगिन टू मोनोपोलाइज, यार तुम थोड़ी उर्दू बोल रहे हो, मैं उर्दू बोलता हूँ, भाई तुम्हारे बाप की उर्दू. उर्दू जिसकी है, जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी है ना, तो मैं भी बोल सकता हूँ जैसे भी बोलूँ. टूटी फूटी है मेरी है, सही है. एंड द अदर थिंग इज कि यू मस्ट नॉट मेक इट बिगर देन थिंग्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट, लाइक ह्यूमैनिटी. ठीक है ना. सो मैं सिंधी हूँ, आप लोग बलोची हो, पर हम इंसान पहले हैं, यू नो. तो सिमिलरली आई थिंक लैंग्वेजेस तो एक्चुअली तो हम इंसान हैं, वो तो बाद में हमें दी गई है ना. मतलब आई नेवर चोज टू बी अ बलोच, या आपने कभी ये अपने वालिदैन को नहीं कहा होगा कि भाई मैं जब पैदा होऊंगा तो मैं सिंधी बोल रहा हूँ. तो ये तो वही जो हमें मिलती है अपने माशरे से. लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर वो है कि जो चीज़ें आप खुद सेलेक्ट करें. जब आप इवॉल्व होते रहते हैं, जो चीज़ें आप खुद सेलेक्ट करते हैं, जो आप पे थ्रो की जाती है वो नहीं, जो हम खुद सेलेक्ट करते हैं. सो वी आर एक्चुअली वी आर थ्रोन्ड बीइंग्स. लेकिन एट द एंड लेकिन जो चीज़ आपको निखारती हैं या एक फेज से दूसरी फेज में ले जाती हैं, वो तब आप जब आप रिस्क लेते हैं, अपनी एक स्टेट से दूसरी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं. अगर आप उसी कुएं में रहेंगे तो वही रहेंगे आप. ऐसे है ब्रो, ऐसे. एंड आई थिंक ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इस मुआशरे को देख लो. Whether you be a man or a woman or what have you, you are always taken to task for things that are not in your control. गोरे हो, काले हो, बाल सीधे हैं या घुंघराली हैं, लंबे हो या छोटे हो, मोटे हो. अच्छा सही. What's interesting is this, right? मोटे पतले पे लोग बोलते नहीं, मोटा नहीं बोलो उसको. पर अल्लाह हर किसी को ये कुव्वत दे इंशाल्लाह. That's something you can control. You could choose to get your life together. But you can't choose to have less melanin, less melanin in your skin. That's just what you were born with. You know, this is how we look, dude. The way we are, this is how we look. So it's interesting कि these things are held or not. You are taught to hold these things against each other, because we also have a colonial past. राइट. तो हम अगर अपने आप से नफरत नहीं करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर हुकूमत कैसे होगी? मसला ये ना ब्रो. तो आप अपने आप से नफरत कर लो, ताकि अब ये पुरानी बात हो गई है जाहिर है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक हम फील कर रहे हैं. लेकिन बात तो यही है ना कि आप अपने आप से नफरत कर लो, ताकि वो लोग आए आपके ऊपर हुकूमत कर लें सुकून से, फिर चले जाएं. और हम जो है यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई बात सुनो भाई, मैं तो तुमसे ज़्यादा गोरा हूँ. ब्रो नहीं. ये स्टैंडर्ड्स जो हैं किसी और के थे, और वो रेस आपको जीतनी नहीं थी, क्योंकि आप इस रीजन के लिए बने हो जेनेटिकली स्पीकिंग, एंड इस रीजन में ऐसा चलता है. बिल्कुल राइट. और आजकल ज़ाहिर है फिर उसको उस चीज़ को, उन कॉम्प्लेक्सेस को मिटिगेट करने के लिए हम दूसरी तरफ हाइपर हो जाते हैं. भाई हर कोई खूबसूरत है जैसा भी है ना ब्रो, नहाना भी होता है, मुंह भी धोना होता है, वो सीन भी है. लेकिन यू नो
it's such an interesting time to just be alive, bro, because of all the information that we have available to us. And मैं आपको ये भी बोल रहा था कि आप लोगों की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग तो ज़ाहिर है माशाल्लाह से, पर थोड़ी मुझे ओल्ड स्कूल लगती है कि आप ज़बान प्रॉपर पूरी सीखनी है, कल्चर में जाके बैठना है, ये चीज़ें. वेयर डू यू थिंक दैट कम्स फ्रॉम फॉर यू गाइस? बिकॉज इट्स ओल्ड स्कूल, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट. वेल अगर आप मुझसे पूछे तो आई नॉट want to confine it by calling it old school philosophy. Okay. ये चीज़ें आई बिलीव ये आप वक्त के साथ साथ सीखते रहते हैं. अब वजूद तो है, आपका भी है, मेरा भी है, इंसान आप भी हैं और मैं भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. खाते आप भी हैं, पीता मैं भी हूँ. हाँ. तो कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं जिनसे आप गुजरते हैं. तो दैट इज़ व्हाट मेक्स यू, जो आपको एक अपने एक स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ ले जाते हैं. अब हमारा ये था कि जिस तरह की इन्वायरमेंट में हम ग्रो कर रहे थे, डेफिनेटली लियारी में पैदा होना और ऐसे लोगों के दरमियान होना जहाँ शायद आप ऑलरेडी कन्फाइंड हैं, ठीक है, समहाउ बिल्कुल कन्फाइंड है. आप अपना हर गोल उस वक्त पूरा नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप अपनी हर चीज़ें पूरी नहीं कर सकते. आप जो आप करना चाह रहे हैं वो करना उसी वक्त पॉसिबल नहीं है. तो कहीं ना कहीं आपको वो जो बाउंड्रीज हैं वो ब्रेक करनी होती हैं. तो जब हमने बाउंड्रीज ब्रेक करना स्टार्ट की, दिस इज फिर उससे जो है ना हमें लोगों में मिलना जुलना या ऑब्ज़र्व करना, वो चीज़ें फिर हमें अच्छी लगने लगी. फ़िलासफ़ी पढ़नी अच्छी लगी और लोगों के साथ बैठना, कतई नज़र इसके कि वो किस रंग नस्ल या किस बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक़ है. तो वो तभी हुआ जब हमने वो जो कन्वेंशंस थी या जो नॉर्म्स थी वो तोड़ी. अब उसको आप अगर ओल्ड स्कूल वो कह रहे हैं फ़िलासफ़ी तो वो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं वो सबसे बेहतरीन ट्रैक है हमारे लिए फ़िलहाल. फिर आगे जाके हम अगर पीछे देखें वो गलत हो सकती है, लेकिन राइट नाउ वी बिलीव कि हम सही जा रहे हैं. क्योंकि हम किसी को लाइक वी आर आर्टिस्ट, छोटे मोटे जो भी हैं, अगर हम कहते हैं अपने आप को हम आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट का तो काम ये होता है कि एक प्रोसेस से गुजरना, ठीक है. जो चीज़ कोई और या कोई नॉर्मल शख्स उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें. अगर फॉर एग्जांपल आप एक फिल्म मेकर हैं, ठीक है, आपने एक तबके के अंदर बैठा है, आप कभी बैठे नहीं हैं तबके के अंदर, किस तरह वो खाते पीते हैं उसका आपको इल्म नहीं है, एंड देन यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ फिल्म ऑन दैट. तो वो आई डोंट बिलीव कि उस तरह से बन के आएगी. हाँ, जब आप उनमें जाएंगे, जब आप बैठेंगे, आप देखेंगे किस तरह बात करते हैं, एक्शंस किस तरह के हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज क्या है और कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, फिर वो चीज़ जो है ना एक अपनी असल शक्ल में आने लग जाती है. तो वहाँ लोग रिलेट बाय बिलीव ज़्यादा करने लग जाते हैं. तो दिस इज़ इसी तरह जो है हम शायद इस तरफ आने लगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करके और जो कुछ थ्रोन्ड आइडियाज़ हैं उनको शायद तर्क करके. हाँ, मुश्किल काफ़ी रहा होगा डेफिनेटली. शायद पहले हमारे लिए कोई एक चीज़ होना सबसे ज़्यादा मैटर करता होगा, लेकिन फिर हमने उसको साइड पे कर दिया. नहीं भाई, इससे बड़ा एक और कौन ऑफ विजन अपना एक्सपैंड करना चाहिए. अभी जिस स्टेट पे हम कहते हैं कि भाई जो हर किसी को इंसान की नज़र से देखें तो शायद चीज़ें आप उनसे निकाल पाएँ. अगर आप ये सोच के देखेंगे कि वो आसिम है, वो बलोच है, या आप सिंधी हैं, या वो फलाना रिलीजियस है, या वो फलाना बंदा यूं है या वो यूं है, तो उस तरह से आप कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे या एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक देयर इज a certain, to my ears at least, there's a certain beauty to what you just said. What you just said was because of where you were born. ये मैंने ये सुना, राइट. अब आपको पता पड़ेगा मेरी सुनने मतलब मेरी हियरिंग अच्छी है या नहीं है. मैंने ये सुना कि आप ये बोल रहे थे कि because of where you were born, because of the circumstances in which you were brought up, you did not have the luxury of prejudice. That's right. Right? You did not have time for that nonsense. क्योंकि अगर आप वहाँ से नहीं निकलते तो वो एक बहुत मतलब it was a difficult situation. तो शायद अगर वहाँ से निकलती तो शायद आज आपके साथ बैठे हुए नहीं होते. अल्लाह रहम करे. तो शायद उन्हीं बखेड़ों में जो है ना लगे रहते हैं और फिर अपनी ज़ाती जो किरदार, अपने कैरेक्टर, उसको अपनी कहानी को शेप नहीं कर पाते, तो वहीं कहीं मैसूर होके रह जाता है. लेकिन हाँ, उस जो सारी पास्ट है या जो सारे एक्सपीरियंसेस है उनका एक काफ़ी बड़ा जो है हिस्सा रहा है हमें, मतलब हमें शेप करने में, एक्चुअली हमें हमारी जर्नी को शेप करने में.
तो वो बिल्कुल पॉजिटिव भी है एक तरह से, नेगेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव भी है, क्योंकि उस नेगेटिविटी में आप क्या जो है मस्बत चीज़ जो है निकाल रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है बनस्बत इसके कि आप सिर्फ नेगेटिविटी में पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन उससे उस चीज़ से क्या सीख रहे हैं वो आई बिलीव ज़्यादा बेहतर है। और उसमें शायद उसी में हमने म्यूज़िक को एक्सप्लोर किया। दो ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं कि यार आपने किस दिन म्यूज़िक जो है स्टार्ट किया, वो एक दिन को मना बिल्कुल वो यू नो लाइक एवरीबॉडी आस्किंग व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्टेड सिंगिंग, सो वी आर लाइक यार कोई दिन नहीं है। When I was born, I started singing. I've been singing. So it's always there inside you. You just need to take it out of your shell. Bro, it's very, very interesting. Not recently, but I did a podcast with Mohammad Wasim. Mohammad Wasim is a boxing champion, हाँ, world champion, right? और मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार वसीम भाई उन्होंने बताया कि मुश्किलात काफ़ी थी और ख्वाब बड़े थे और जूते नहीं थे पहनने को, and I was just like, dude, that's something, man, you know. And you know, all these naysayers, all these people who were, you know, negative, he's like, यार I welcome them. वो बहुत लाजमी थे मेरे लिए, you know, जो आप बोल रहे हो ना कि वो ये चीज़ें आप लोगों को शेप करने के लिए लाजमी थी, क्योंकि देखो यार, हाँ ठीक है, नेगेटिव इमोशंस आर बैड, दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव, राइट? बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर नेगेटिव इमोशंस एज वेल. आई थिंक हम एज अ मुआशरा जो पोलैरिटी में एग्जिस्ट करते हैं ना कि यार ये अच्छा है ये बुरा तो इसको रखो और ये बुरा है तो इसको निकाल दो. नहीं, शेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिल्ट नहीं होना चाहिए. ब्रो गिल्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैंने कुछ गलत किया तो गिल्ट होना चाहिए. अगर कुछ किसी को बुरा लगा या तो फिर शेम भी होना चाहिए शायद, यू नो. तो उसी तरीके से ये जो आपके सर्कमस्टांसेस, दो ऑब्वियसली वी सिटिंग हियर विशिंग के दे नेवर एग्जिस्टेड. हाँ, अल्लाह करेगा आगे कभी भी नहीं होगा. और जो हुआ मतलब बहुत मुश्किल बात थी, बहुत मतलब ख़तरनाक सूरत हाल थी. लेकिन हैविंग सेड दैट, वही आपने जो बोला कि इफ़ यू, आपने जो बोला कि अगर नहीं तोड़ते तो शायद यहाँ नहीं होते, पर देन आपने बोला कि अगर नहीं गुजरते तो शायद आर्ट भी नहीं होता, यू नो. मतलब it wouldn't have been, because so वही जो बात है पहाड़ों से आवाज़ आना, you need to build yourself up to do art. Because for art you are the conduit, right? तो conduit अगर मजबूत नहीं है, अगर उसमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर you can't take it. Exactly ना. क्या बात है यार, हम फिलोसोफर्स हैं माशाल्लाह से यहाँ पे. और अलबत्ता ये कि बाकी चीज़ें हमने खुद मतलब तगोदो की चीज़ों को निकालने के लिए. तगोदो क्या होता है भाई? तगोदो हाथ पैर मारना, स्ट्रगल करना. लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट आई बिलीव हमारे वालिदैन को जाता है, मेरे वालिद साहब को, मेरी वालिदा को, माशाल्लाह. तो उन्होंने ये जो आप हिम्मत की बात कर रहे हैं ना, तो वो ये चीज़ हमने उनसे सीखी है कि जो भी हो जाए. और हाँ, हम अपने आप को फिर भी लकी मानते हैं. आप जो आप जो प्रेजुडिस की बात कर रहे हैं या जो लग्जरीज की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हर कोई एक किसी एक स्पेसिफिक जगह पे पैदा होता है, एक क्लास में पैदा होता है, फिर वो इवॉल्व करता है. तो हमारा तो फिर भी हम अपने आसपास वालों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम उनसे बहुत बेहतर, क्योंकि जो स्ट्रगल शायद दूसरे करें वो हमारे वालिद पहले ही कर चुके हैं हमारे लिए. एंड ही हैज़ मेड थिंग्स ईजियर फॉर अस. वो प्रोफेसर हैं एक्चुअली. अच्छा. जी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं. तो उनका बचपन है वो काफ़ी वो वैसे गुजरा, शायद हमने वो कभी इमेजिन भी नहीं किया वो चीज़ें. 1% भी हमने उसका कुछ फेस नहीं किया. बिल्कुल. एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ अस, नॉट लग्जरीज बट वी वर ओके. मतलब हमारे साथ कभी हमने ऐसा महसूस नहीं किया कि कोई चीज़ हमें चाहिए और हमें मिली नहीं हो. ऐसा नहीं. हमें पता है कि हमें ये चीज़ चाहिए और वो हमें मिल जाती है. ये हमें टाइम लगता ऑब्वियसली, 1 महीना 2 महीना 2 दिन 3 दिन, लेकिन वी काइंड ऑफ गॉट एवरीथिंग, यू नो. तो वो ला के देते थे चीज़ें, और जो भी चीज़ें कोई हमें चाहिए होती थी, जो ज़रूरत होती थी. तो ऐसा नहीं हुआ कि हम बहुत ज़्यादा उसके लिए हमें बताते खुद हाथ पैर लगानी पड़ी, या कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, या जाके जॉब करना पड़ा, या फिर जो है गैराज में काम करना पड़ा. ऐसे लोग बेतहाशा हैं लहरी में जो गैराजेस में काम कर रहे हैं, जैसे जगहों पे काम कर रहे हैं, जस्ट टू यू नो फिल देयर स्टमक्स. आई बिलीव उनका तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी उनके लिए मैटर करती है. लेकिन वो चीज़ हमारे वालिद ऑलरेडी, लाइक उनका जो घर था वहाँ रूफ प्रॉपर नहीं थी, तो बारिश वगैरह होती थी ना, वो थोड़ा सा वो कहीं और चले जाते थे, पोलो ग्राउंड चले जाते थे पढ़ने के लिए, या फिर मच्छर कॉलोनी. बैक देन वहाँ घर वगैरह नहीं थे मच्छर कॉलोनी में, तो वहाँ जाके अपने घर से पैदल जाके वहाँ पढ़ते थे. और तो वो उन्होंने स्ट्रगल काफ़ी किया. होटल में वो काम कर चुके, मतलब वो जो बर्तन वगैरह थे वो धोते थे.
छोटी एज में काफ़ी, जब 13-14 की एज में या उससे भी शायद छोड़ते, उस वक्त तो हम शायद खिलौनों से खेल रहे होते थे, लेकिन हमारे वालिद ने वो चीज़ें, तो उन्हीं की वजह से हिम्मत की जो आप बात कर रहे हैं या एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, ज़ुबानों से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये हमें उनसे वो उनसे सीखने को मिली है। तो बिल्कुल सारा क्रेडिट हमारे वालिद। तो शायद ये भी हो जा सकती है कि आप ओल्ड स्कूल लग रहा है, क्योंकि वो हमें उन्होंने ये चीज़ हमें ट्रांसमिट की हमारे अंदर, सो मे बी दैट्स पॉसिबल है। ओल्ड स्कूल बोलने का मकसद मेरा जो है ना वो ये है कि जो कंटेम्प्रेरी सोच है ना वो ऐसी नहीं है। जो आपकी जो सोच है ना ये कंटेम्प्रेरी नहीं है। ये तो है। और आप ये जो है सिर्फ अपने, क्योंकि आप लोग इतने उम्र में बड़े भी नहीं हो, आप लोग की बातें माशाल्लाह से बहुत एक मैच्योर बातें हैं। आप अपने हम उम्र सेम इंडस्ट्री में लोगों को देख लो, बिल्कुल मैं नहीं जानता हूँ। अब ये देखो, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कि सब ऐसे एक तरीके के होंगे। एक और ये अपना औज बैंड का जो लीड वोकलिस्ट है अब्दुल रहमान, उसकी बातें आप जैसी है, वो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस टू योर्स ऑब्वियसली, राइट, बट ऑल्सो वेरी सिमिलर, राइट, बातें बिल्कुल बहुत सिमिलर हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब नहीं होंगे, लेकिन जनरली आप लोगों की जो बातें हैं वो they're not conventional, थोड़ी unconventional बातें कर रहे हो आप लोग, you know, and I think that's powerful. And also I would just like to say कि the deference you've shown your father and obviously the work that he's put in, यार माशाल्लाह, अल्लाह रहम करे। मतलब again again one wishes that he didn't have to, you know, one wishes that he didn't have to, but at the same time I think all the praise that I could give him would be, अच्छा ये मैं बात बोल लूँ फिर हम अजान के लिए रुक जाते हैं। All the praise I would give him would be inadequate, but I suppose the beauty of a man like him is he also doesn't need it. वो ये भी मैं समझता हूँ जो आप मुझे बता रहे हो उससे I'm just assuming कि वो दो चीज़ें नहीं करते होंगे। एक, वो रिग्रेट नहीं करते होंगे अपनी ज़िंदगी को, और दूसरा वो दूसरों के अप्रूवल के लिए तो कर ही नहीं रहे थे ना। तो वो and there's such power in a person like that who's thinking कि यार ये तो करना था ना, you know, किसी को एहसान समझ के या ऐसे नहीं करते होंगे ये लोग, you know, it's just the kind of person he is. That's a powerful thing, dude, you know, that's a powerful thing माशाल्लाह से। अब ये हैवी हो गया, तो चलो 15 मिनट्स में नमाज की ब्रेक ले लेंगे इंशाल्लाह। what was I saying? Okay, so a political scientist, a professor in political science, आप लोगों ने जब उनको बताया कि यार तो नहीं बोला होगा ज़रूर, आप लोगों का वालिद साहब सिंगिंग करनी है, क्या तासुरात थे? कैसा टॉक शो वाला सवाल पूछे, क्या तासुरात थे आपके वालिदैन के? तो पहली बात तो ये है कि हम यार कह के उनसे बात करते हैं, मतलब अच्छा करते हैं यार, बिल्कुल ऐसी बात होती है। He's our friend, वो दोस्त हैं हमारे, और ये हमें बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि हमें सिंगिंग चूज़ करना है, क्योंकि वो खुद उनके पास हारमोनियम था और उस पर वो प्रैक्टिस किया करते थे। वो इज इन द प्रोफेशनल सिंगर, उन्हें लेकिन लाइक ही यूज्ड टू परफॉर्म इन सम लिटिल इवेंट्स जैसे कॉलेज के होते हैं, इस तरह के होते हैं। सो दैट्स समथिंग मैन, सो यूनिवर्सिटी इवेंट्स, सो ही वाज इनटू दिस, और वो हमेशा अच्छी चीज़ें सुनते थे, मतलब सुरीले लोगों को या अच्छा म्यूजिक सुनते थे। सो उनकी भी आवाज़ नो डाउट उनसे ही हमें चीज़ मिली। डेफिनेटली डीएनए में कहीं ना कहीं होगा, ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती है वो चीज़, ज़ाहिर है ब्रो। तो उनकी वजह से एक तो अच्छी चीज़ें सुनने का ज़ौक़ हुआ, और वो खुद उनके पास वो हारमोनियम था जो शायद हमारे लिए ज़्यादा फैसिनेटिंग था। बिल्कुल बचपन की बात है, याद नहीं उसके बाद वो हारमोनियम कहाँ गया, वो काफ़ी लंबी वैसे बीच में यहाँ वहाँ हो गया, लेकिन यह है कि वो था, मतलब उनकी जो ये चीज़ थी इनके अंदर के म्यूज़िक मतलब कर रहे हैं या उसका ज़ौक़ है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डेफिनेटली आ गया। तो हमें बताना नहीं पड़ा, वो खुद कहते थे कि यार यहाँ जा ये अगर कोई इवेंट हो रहा है यहाँ जाके परफॉर्म करो, या वहाँ कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे परफॉर्म करो, तो वो हमें खुद प्रेस किया करते थे। That's beautiful, dude. That's beautiful. But obviously आप लोगों ने मुझे बताया, and we will get into it, कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये तो ऑप्शन कभी भी नहीं था ना कि सिर्फ यही करो। ये तो ऑप्शन मैं नहीं ख्याल आपको देते वो कि आप पढ़ाई छोड़ दो और सिर्फ ये करो। नहीं, अगर देखिए अगर वो कहते तो कहता है यही पढ़ लो, हाँ, अगर उसकी प्रॉपर एक पढ़ाई होती तो हमें बिल्कुल कह भी देते कि आप यही पढ़ लें, अगर ऑप्शन होता तो। हाँ बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली हमने एनसीए जाने का सोचा भी था,
म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाने का एक्चुअली। NCA इज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। या क्या बात है मेरी यार, माशाल्लाह, ये भी पता है मुझे। तो फिर ये था कि अब चूंकि हम छोटे हैं घर में सबसे, हमसे बड़ी एक बहन है, और फिर उनसे बड़े हमारे सबसे बड़े भाई हैं, अच्छा, माशाल्लाह। तो बहन की शादी होगी, बड़े भाई की भी शादी होगी, तो हम हैं 2 छोटू। तो घर का सारा जो सीन है देखना, ये वो दही ले आना है, पानी ले आना है, वो चीज़ें भी हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, वी कैन नॉट रन, अपनी जिम्मेदारियों से तो भाग नहीं सकते। नहीं, लोग भाग जाते हैं, लेकिन भागना नहीं चाहिए। लेकिन हम मतलब हम नहीं चाहते कि हम कभी भी भागें। अल्लाह रहम करे। तो फिर ये था कि हमने कुछ दोस्तों से बातचीत की वहाँ पे, मैंने हैशटैग वहाँ NCA का इंस्टाग्राम पे सर्च किया, तो कुछ दोस्त वगैरह बन गए उस तरह NCA से। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे फ़िलहाल आप जो है ना, फ़िलहाल वो जो चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं, आप वहाँ कराची में भी कहीं सीख सकते हैं। और फिल्म का ये था कि फिल्म हमें पसंद थी शुरू से। So you're studying, intro मैंने दी नहीं, हाँ? So you're studying film at Karachi University. डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज। और परसों हम अल्हम्दुलिल्लाह, आई बिलीव इंशाल्लाह हम जो है ग्रेजुएट ही हो जाएंगे। Dude, that's fantastic, man. Yeah, both of you? both of you obviously. Yeah, तो आप छोटे नहीं हो। अच्छा, ये हुआ था कि शुरू के 10 साल मैट्रिक तक मैं से एक क्लास आगे था। अच्छा जी बिल्कुल। एक क्लास आगे कैसे थे आप? You're only 10 minutes older than him. वो भी हमारी वजह से नहीं। वो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसकी वजह क्या थी कि हमने मॉन्टेसरी शायद एक साथ पढ़ी थी। फिर उसके बाद जब KG1 का ये तो स्टैंडर्ड्स जो बने हुए, KG1 में जब हम गए स्कूल, हमने चेंज किया, तो वहाँ जो प्रिंसिपल थी, आई बिलीव शी आस्क्ड अस टू राइट समथिंग, जो कि मैंने लिखा, और आसिम भाई चले गए कलरफुल टॉयज की तरफ। He started playing with them. तो क्या तो अगर कैटेगोरिकली crayons and colors all over. आर्टिस्टिक बनना है तो क्या कैटेगोरिकली देखा जाए, हाँ, तो वो क्रिएटिव ज्यादा था, हाँ, उसको कलर से मोहब्बत होगी, और मैंने जो मुझे ऑर्डर दिया गया मैंने तो सिर्फ वही किया। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने मुझे इंटेलिजेंट समझ के मुझे कहा कि ये पढ़ेगा, उसको पीछे कर दो। तो यहाँ देखे कि माशरे में किस तरह टैग कर दिया जाता था, स्लेव बना दिया जाता कि भाई एक छोटे से जेस्चर से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो जो है कम ज़हीन है, और ये था। हालांकि मुझे 5 मिनट, हालांकि मैं उसका भाई हूँ, आई नो कि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। नहीं, एडमिटेड कि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये था कि वहाँ से फिर 10 क्लास हमने। अब वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि वो है। नहीं, मैं बड़ा हूँ यहाँ पे, शायद मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, इंटेलिजेंट हो जाता है। फिर आपने वही बात कर दी कि मैं बड़ा हूँ, फिर आपने वही वाली बात। ये देखो, अब हाउ डू वी फिगर दिस आउट? अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन that's what you're saying is very very, and we must comment on this कि अभी तक in the study of intelligence there are 9 dimensions of intelligence, right? And IQ, which is intelligence quotient, is just one of them. Calisthenic awareness, which is the physical awareness of your body, spatial awareness, which is awareness of your surroundings, ये भी intelligence होती है। मतलब इसको भी जज किया जाता है। अब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, एक नॉर्मल इंसान इनमें से किसी में भी जीरो नहीं होता, सब थोड़ी थोड़ी होती हैं, राइट? इमोशनल इंटेलिजेंस होती थोड़ी थोड़ी होती हैं, न्यूमेरिकल आई थिंक इंटेलिजेंस भी ऐसे, बट द क्रक्स ऑफ द थिंग इज कि मुद्दा ये बात का कि कुछ लोगों के पास कुछ लेवल ज़्यादा होते हैं, राइट? तो आपके पास जो था, मे बी वही जो बोल रहे हैं कि क्रिएटिव एस्पेक्ट पे शायद ज़्यादा है, यू नो। अब वही वाली बात है, इसके ऊपर अगर मुआशरा आपको बोलेगा कि आपको यही करना है और आपको इसमें जो है ना किंग बन जाना है, तो आपके लिए वो बहुत आसान चीज़ होगी और फ़ायदेमंद होगी, बिकॉज you know you have that proclivity, right? But if you are told to be good at what I'm good at naturally, that's going to be a horrible time for you, you know. That's not going to be this is what happened उस दिन यही हुआ, क्योंकि शायद वो भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से उनके साथ भी हुए, तो उन्होंने वही स्लेव थी वो खुद भी, और उन्होंने जो है हमें भी ये कर दिया। तो 10 साल हम आगे पीछे रहे, सिर्फ उनके 5 मिनट की वजह से हम 10 साल आगे पीछे रहे। सोचिए कितने एक्सपीरियंसेस हो सकते थे अगर साथ हम होते तो फिर 2 सालों में कॉलेज के हमारे इतने एक्सपीरियंसेस जब हो सकते हैं, तो उन 10 सालों में क्या क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमें अलग कर दिया। तो फिर ये हुआ कि जब मैंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर ली अपनी, तो फिर मैं अभी पब्लिक कॉलेज में लग गया, वहाँ प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। आई डोंट नो व्हाई आई वाज डूइंग दैट। आसपास से बातें आती थी कि भाई इंजीनियरिंग पढ़ लें और ये वो, उसमें पैसे की तो बात नहीं थी, लेकिन वो शायद उसको काफ़ी, हाँ, लेकिन इवेंचुअली वो पैसे वाली बात आ जाती, ठीक है। तो मैं लग गया, एंड आई डोंट नो व्हाई द हेल आई वाज डूइंग दैट। आई एक्चुअली आपने वो जो 10 साल पहले आपने जो लिख के दिया था ना टीचर को, वही मसला था आपका। तो हम सही हैं, हम सही हैं एग्जैक्टली। अब अगर ना करते तो शायद। तो ये हुआ कि
कभी कभी बीमारियां जो है आई बिलीव आपके लिए ब्लेसिंग भी बन जाती है। तो उन दिनों मैं बीमार हो गया जब AKU बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन का टाइम आ जाता है, तो उन दिनों मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं एडमिट हो गया था लियाकत हॉस्पिटल। अल्लाह खैर करे ब्रो। तो इतना कौन सी तबीयत ख़राब हो गई? उन दिनों मुझे थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था चेस्ट का। अच्छा। तो फिर वो दिन निकल गया। अब रजिस्ट्रेशन के 2 दिन होते हैं, वो निकल गए। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार भाई मैंने तो ये करना ही नहीं है। वो तो मुझे पता था कि मुझे वहाँ सिर्फ खेलना अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी पब्लिक का जो फुटबॉल का ग्राउंड था, राइट, टूर्स वगैरह करते थे, इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, बिल्कुल बास्केटबॉल कोर्ट था, स्विमिंग पूल था, दैट वाज। तो फिर यहाँ भी बगावत इन्होंने की भाई साहब ने। जब इन्होंने मैट्रिक कर लिया, इन्होंने कहा कि अब्बू मुझे ये नहीं करना है, ये इसकी हालत तो देखें, ये मतलब कर नहीं पा रहा है, ये जानबूझ के। टेंजेंट वो वी वर नॉट इनटू दीस थिंग्स, वो समझ ही नहीं आती थी। ब्रो किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बिल्कुल क्या करें। तो इन्होंने बगावत की और फिर हमने जो है इनका साथ दिया, ह्यूमैनिटीज। तो फिर मैं निकल गया। फिर हम जो है सेंट पैट्रिक्स में साथ हो गया फिर से। बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह। सो I have mashallah alhamdulillah I also have 3 other siblings. So मेरे से जो छोटी बहन है, she's a year younger than me, but I have the same relationship. और मेरा भी यही होता है कि सारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग या डिसेंट करना या किसी चीज़ में कोई नई सोच लाना, वो लाती हैं। पर मैं बोलता हूँ हाँ सही बोल रही है, सही बोल रही है, मैं सपोर्ट कर लूँगा इनको। बिकॉज द थिंग इज डूड आई डोंट नो। खैर आप लोग, क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट इन माई फैमिली ना, इन टर्म्स ऑफ सिबलिंग्स, सो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स विद यू गाइज, बिकॉज यू आर बोथ टेक्निकली द यंगेस्ट। टेक्निकली यू आर बोथ द यंगेस्ट। But I think depending on where you are in terms of the sibling hierarchy, or the children hierarchy, the family hierarchy, आपकी proclivity बड़ी फ़र्क होती है। तो जो छोटा होगा ना सबसे, उसकी ये ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि यार देखो मैंने तो जो है ना नई ज़मीन ढूंढनी है, मैंने तो जो है नया मतलब नए क्या बोलते हैं कि नए झंडे गाड़ने, मैं तो ये करना है, मैं तो ये काम है ब्रो, यू नो। तो आप जो भी चीज़ मुझे बता रहे हो, मैं तो आई टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा इनमें बच्चों में, वो उसको एक तरीके से उसकी प्रोक्लिविटी ये होती है कि उसको फर्माबरदार बनना होता है। अब मैं नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, लेकिन एक बात होती है। सो देयर इज़ दैट it speaks to your position on that hierarchy as well, कि आप जो है you've not been conventional, you know, कि यार ये काम नहीं करने तो नहीं करने। हाँ, तो बहरहाल so he was like कि यार ये नहीं गैर मतलब बाबा ये नहीं करते, and then you were also like कि हाँ नहीं करते, and then where did you end up? फिर हम सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में हम ह्यूमैनिटीज़ करने लगा। सेंट पैट्रिक्स कॉलेज इज गुड जी। तो हमने वहाँ ह्यूमैनिटीज़ में जो है अपना क्या सिलसिला सारा, और आई बिलीव वहाँ से थोड़ा हमने चीज़ें जो है ना अपने वहाँ, वो भी इतना एज सच वो जो इमेज हम बना देते दिमाग में, एज वी वर टॉकिंग अर्लियर, तो उस तरह था नहीं, लेकिन वहाँ से कुछ सीधा बातें थी जिन्होंने हमें शायद कहीं ना कहीं पे, लेकिन वहाँ सबसे अच्छी चीज़ जो हमने एक्सप्लोर की वो ये थी कि मुख्तलिफ लोग आते थे वहाँ पे, तो वहाँ हमने हर किसी से रिलेशन एक काम कर दिया था। गार्डनर अगर था तो उससे भी हम बैठ के बातचीत करते थे, कैंटीन में अगर कोई कुछ कर रहा है उनसे भी बैठ के बातचीत, और वहाँ जो है हम कभी भी चेयर पे नहीं बैठे, वो बेंच होती क्या होती है उस पर कभी नहीं बैठे, तो हम नीचे ही ग्रास पे बैठते थे और कचहरियाँ लगाते थे वहाँ पे दोस्तों के साथ, कभी कोई कोच के साथ, फुटबॉल कोच के साथ। तो वहाँ हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। तो वहाँ जो है हमारा एक ज़ाविया जो है ना वो बदलने लग गया, फिर वो बदलता गया और ज़्यादा एक्सपैंड होता गया। Do you know you guys aren't done developing physiologically? You get done at 25. ओह, अभी आप लोगों को 1 साल है। हाँ, अभी आप लोगों को नहीं बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरा भी हो सकता है। हाँ, ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ ब्रो होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसा कि एग्जांपल, हाँ नहीं, एग्जांपल मेरा है ना, क्या है, मैं जो था आई यूज्ड टू बी, आई सपोज आई वाज वेरी न्यूमेरिकली इंक्लाइंड टिल आई वाज 24। और 24 साल के में मैंने बोला भाई ये तो बाएं हाथ का खेल है, अब जो है ना फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि आफ्टर आई रीच दैट एज, अब जो है मुझे मैथ का एम नहीं समझ आता ब्रो। सो यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी है और अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, लेकिन यू नो you must continue to follow those habits that have gotten you here. that's right. अच्छा, अब मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता। मैंने भी कल रात
कुछ पैसे बच गए थे, मैंने स्टेप से लिए। नाइस। नशे करते हैं भाई हम, देख लें भाई। हमें सिर्फ यार एक नशा है। हाँ सिर्फ एक नशा, चाय का नशा, बस चाय का। चाय का? खतरनाक वाला है। हाँ ब्रो, यहाँ पे तभी तो चाय नहीं मिलती आपको। खतरनाक वाला। देखिए मैं जो है नशा नहीं करने दे रहा हूँ आप लोगों को ब्रो। नहीं, मैं अकेला रहता हूँ ना यहाँ पे, तो कोई बनाने वाला नहीं है चाय। एक्चुअली मैं खाना भी दिन में एक बार खाता हूँ, बाहर से खाता हूँ। हमारे घर के सामने असल में पठान के होटल है ना, 2 होटल्स हैं, मंगवाते हैं, वो ले ऊपर ले आते हैं, फुल दूध पत्ती, फुल खतरनाक वाली। अरे यार दूध पत्ती क्या करें दूध पत्ती का ब्रो। अच्छा पता है, आई व्हेन आई केम बैक फ्रॉम Canada, आई वाज आई थिंक I must have been 25, 26, and I had till that point never had tea. Never had tea. चाय वाय कोई सीन ही नहीं था ब्रो। मैं बर्गर भी था, हाँ इन माई लाइफ, हाँ बर्गर भी था, कॉफ़ी मतलब थोड़ी चलती थी, लेकिन चाय नहीं था। जो सीधी बात है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। लेकिन वापस आया तो काम के सिलसिले कुछ ऐसे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों के साथ बैठना पड़ता था। वो चाय मंगाते थे, कराची है ब्रो, चाय मंगाते थे। और फिर कुछ उनमें से ऐसे लोग होते थे जो बुरा मान जाते थे अगर आप चाय ना पियो। हाँ तो फिर अब माइक को थोड़ा एम कर लो अपने। Are we doing it? हाँ we're going। ये ऐसे है ब्रो, कोई मसला ही नहीं है। We're talking about chai right now. We're going to talk about chai. तो एक मिनट, अगर मैं आपके पास आता और आप चाय मंगाते और मैं नहीं पीता तो आपको बुरा लगता? तो यहाँ शायद हम थोड़े बायस हो जाते, कहते कि यार कैसा आर्टिस्ट है, कैसा अजीब आदमी है, चाय नहीं पी रहा है, भरोसा नहीं करना इसके ऊपर, क्या ट्रस्ट है। हाँ लेकिन टी बैग वाले नहीं सर, जो टी बैग वाली चाय पीता है वो हम में से नहीं बेचता। अरे हाँ अल्लाह रहम करे। चलो पठान वाली सर, वो जो बनती है ना खुद वही पतीले, हाँ जो लिक्विड कम होती है और रबड़ ज़्यादा होती है वो वाली इसमें दूध ज़्यादा सर, दूध और पत्ती ठोक के सर, वो वाली जी भाई देख लें, अल्लाह रहम करेगा। तो यार हाँ ब्रो, आई गेस दूध पत्ती इज़ इट्स समथिंग मैन। अब मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी मूड हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सर्दी है ना, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा मूड होता है। अलग वो कप होल्ड करने की कैफियत। हाँ that's something else, you know, I find it very cinematic actually. Cinematic। आपको पिलाएंगे कहीं तो वो वाली हमारी तरफ है एक रणछोड़ लेन का नाम सुना आपने? रणछोड़ लेन नहीं ब्रो, मैं गार्डन नाम सुना है? गार्डन तो सुना है, जो गांधी गार्डन है। गार्डन वाला ये जो सामने वाला रोड है वो सीधा स्ट्रेट जाता है, तो उसे रामस्वामी भी कहते हैं और रणछोड़ लेन भी कहते हैं। उसके राइट पे जाएंगे तो लारी के लिए वो चील चौक आ जाएगा, ठीक है। तो रामस्वामी में एक पुरानी होटल है, वो आज़ादिया पाकिस्तान से पहले की होटल है। ओके। लेकिन इसकी जो चाय है सर, बस वही है, उसका कोई हरीफ ही नहीं। हरीफ मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो मोनोपोलिस्ट एक्चुअली। अच्छा, इधर मोनोपोलिस्ट है, वो उनकी चाय अलग है बिल्कुल, तो वो कभी पियेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह ब्रो। That's beautiful and that's so interesting. He probably has an age old recipe, dude, you know, है ना? He must have something. क्या डाल रहा है उसके अंदर? It's very different. I guess वो ज़्यादा शायद उसमें कोई गुड़ वगैरह डालता होगा, क्या सीन है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन वो है कमाल की, ये पता है। ब्रो मैं एक दफ़ा दूध पत्ती पी थी, अच्छा हैदराबाद में ना। अच्छा हैदराबाद में, आई वाज बोर्न इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो है थोड़ी ज़्यादा सर्दी होती है कराची से। तो अभी रिसेंटली बात है, वहाँ पे एक तो हैदराबाद हो, सर्दी हो कोई 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, और उसके ऊपर आप खुले मैदान में बैठे हो। तो मैंने बोला कि ये तो ज़्यादा सर्दी हो गई है, और वैसे भी आजकल मैं सर्दी जो है कम ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मुझे बोला बेटा चाय पिए, पी लेंगे चाय, अगर आग से उतारी हुई है अभी तो मैं पी लूँगा, गर्म है। चाय में उन्होंने डाली थोड़ी सी इलायची, ओए होए होए होए, पता नहीं क्या किया उस चाय ने मुझे, लेकिन गर्म कर दिया बहरहाल। चाय, यू नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि whatever kind of concoction you make of it, उसमें आप कुछ लोग शहद डाल के पीते हैं, हाँ वो भी अच्छी होती है। कुछ लोग अदरक डालते हैं, that's also very interesting है। वो कावा टी जो होती है, कावा में कुछ लोग नींबू निचोड़ते हैं। मैंने वो दूध पत्ती में नींबू डाला, दूध पत्ती में चाय की बुलाए का पीरा हो जाएगा। Anyways, all right. Because obviously, you know, you guys are musicians, but you're also, inshallah, making your short film, which we're going to talk about, inshallah. Lekin, again, in music, who was, again, ye full talk show host wala,
मैं आपको फील दे रहा हूँ. Who was your greatest inspiration in the music scene? कोई स्पेसिफिक कोई एक शख्स नहीं, ये तो जिसको भी सुनते वो हमारी इंस्पिरेशन रहती है. सो इट डिपेंड्स कि किस टाइम पे किसे सुन रहा है. एंड वी आर नॉट लाइक बाउंड ऑफ एनी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ म्यूजिक स्टाइल. वी आर नॉट एनी जॉनरा और समथिंग लाइक दैट. जो आता है सब कंज्यूम करता है, सब सुनता है, सबसे सीखने की कोशिश करता है. चाहे वो पाकिस्तान के जितने भी रीजन है सबके फोक म्यूज़िक हो, चाहे इंडिया का राजस्थानी म्यूज़िक हो, चाहे वो पर्शियन म्यूज़िक हो, चाहे वो ईडीएम हो, चाहे वो बीथोवन की सिम्फनीज़ हो, चाहे वो फ्रेडरिक शोपेन के पियानो पीसेस हो, सब सुनता है. और हम आजकल जो है बंगाली म्यूज़िक वो कुछ ज़्यादा सुन रहे होते हैं. तो उसका काफ़ी ज़्यादा तो ये था कि इंस्पिरेशन हर कोई इंस्पायर कर रहा होता है. कोई एक शख्स नहीं है यहाँ पे. जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जिससे हम रिलेट करो, जो चीज़ हमें नहीं लगती है, जो डिफरेंट लगती है, वो चीज़ इंस्पायर कर. और हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, मतलब हमें हम डे टू डे प्रोसेस है हमारा. ये नहीं कि कोई गोल बनाया हुआ है फिर उस पर जो जाके हम डिसाइड करेंगे कि नहीं. कोई दिन में अब रास्ते में आते हुए कोई अगर मजदूर है, कोई काम कर रहा है, वो भी जैसे आप बात कर रहे थे दिखा हु इज़ वॉकिंग देयर, वो भी मैं इंस्पायर कर सकता है. कोई देख के मैं मुस्कुरा दे अचानक. मतलब मेरा एक दिन था कि काफ़ी बुरा दिन था हम दोनों का, अल्लाह रहम करे. तो मतलब एक्सपीरियंसेस कुछ अजीब सी थी. तो हम रास्ते में आ रहे थे, पेट्रोल वगैरह भी ख़त्म हो गया एंड बारिश हो रही थी, बाइक का भी मसला हो गया. तो फिर एक अंकल जो है रुके वहाँ पे. 2 कदम आगे नहीं, वो वहाँ जा रहे थे. जी बाइक पे जा रहे थे. हाँ बिल्कुल. तो वो वहीं पे बाइक पे जा रहे थे. तो वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें बॉटल दी. मतलब क्या किस चीज़ की बॉटल है, दे रहे हैं, मैं अचानक से क्यों दे रहे हैं. तो शुरू में मैं थोड़ा सा वो हो गया ना. हालांकि गलत है ऐसा डायरेक्टली आपने देख के जज कर लिया. मैं काफ़ी इस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि मैंने डायरेक्ट कैसे कर लिया. तो फिर उन्होंने कहा, बेटा ये लो, तुम्हारी पेट्रोल ख़त्म हो चुकी है, ये पेट्रोल है, मैं लेके घूमता हूँ. और मैं एक्चुअली वी वर 3 फ्रेंड्स गोइंग. मैं था, आदिल और एक और दोस्त है. तो मैं और वो दोस्त जो आदिल, उसके बाद मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है आदिल, यार नहीं लेना. हो सकता है क्या तेज़ाब वेज़ाब अंदर हो, कुछ कोई सीन हो, मुझे नहीं पता था. क्योंकि तो वो अंकल कहते हैं कि कैसा ज़माना आ गया है, मदद करो मेरी. तो उन्होंने ऐसा कहा. फिर जब हमने उन्हें अप्रोच किया और देखा कि एक्चुअली उनके पास पूरा, वो कह रहे थे कि मेरे पास पूरी एक बोरी है, मैं लेके घूमता हूँ अपने साथ पेट्रोल. और जब कोई नीडी दिखता है मुझे तो मैं उसको दे देता हूँ. हम तो भी गए हम लाइक 100 रुपीज़. उसने कहा नहीं बेटा क्या कर रहे हो. कहते हैं ये नहीं, कहते तुम भी ऐसा काम करना. उन्होंने ये बात. और उनकी एज क्या थी आदिल? वो आए गया 70+ ही होंगे, काफ़ी एजेड इंसान थे. तो उन्होंने 50 बाइक थी उनके पास, उसकी टैंकी में वो सारे वो पेट्रोल के वो लेके घूम रहे थे. वो नहीं, बॉक्स बनी हुई थी बाइक के आगे जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चला करती, रेड और वाइट, इसमें वो पेट्रोल लेके घूमते. ही वो लाइक के बेटा ऐसा काम आप लोग भी करना. तो क्या कहानी है ब्रो. यही सर, यही तो उस ऐसी चीज़ें हमें इंस्पायर करती है. कोई देख के मुस्कुरा दे, अचानक आप चल रहे हैं मुस्कुरा दे, वो चीज़ इंस्पायर करती है. तो कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं, हमने एक बाउंड्री नहीं बनाई हुई कि इसी दायरे के अंदर रहेंगे तो कोई हमें इंस्पायर करे, कोई बड़ा शख्स होगा वो इंस्पायर. एक और मुझे ऐसी कहानी याद है. मुझे याद है 2014 में हम एक कोर्स कर रहे थे फोटो जर्नलिज्म का. सो तारिक रोड पे हो रहा था. वो एक एनजीओ के सपोर्टेड ऑब्वियसली था. तो हम वहाँ से वापसी में पॉइंट कहीं पे मैं नयाबाद की तरफ छोड़ती थी. तो पॉइंट से मैं और मेरा कज़न जो है वापसी में आ रहे थे. तो उस दिन भी कुछ मामला हुए थे जो उनकी वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था और वैसे ही. लेकिन जब मैं वॉक करता हुआ आ रहा था उस गली में, तो एक अंकल थे, वो भी 70+ ही थे. उन्होंने आके मुझे रोका. मैं परेशान हो गया. मैंने बोला पता नहीं क्या सीन है. 2014 की बात है सर. तो उन्होंने रोका. वो बलोच भी नहीं थे, लेकिन बलोची ऐसी कमाल कर रहे थे कि मतलब फिर बलोची में शुरू हो गया मुझसे. कहते बेटे तुम क्या करते हो, क्या सीन है. मैंने कहा कि सर मतलब आप क्यों पूछ रहे हैं. कहते तुमने सिर्फ बैग ये पहना हुआ है ना, ये बैग लेके चल रहे थे ना, इसकी वजह से मैंने तुम्हें रोका. वाह वाह वाह. फिर वो मैं जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं ऐसे जाने नहीं दूंगा. कहते चलो होटल पे बैठ के चाय पीते. उन्होंने बिठाया. उन्होंने 2-3 घंटे बात की. यकीन करेंगे आप मेरे कज़न, और हम एक सेकंड के लिए बोर नहीं है. वो इतनी नसीहतें, इतनी बातें, इतनी चीज़ें सिखा रहे थे. वो हर एस्पेक्ट से लेके जो है ना बातें बता रहे थे. तो वो बहुत मज़ा आ रहा था उनके साथ. और उन्होंने जो चेंज कर दिया, मतलब आने से पहले मैं क्या था, बहुत मूड ऑफ था, लेकिन जब उनके साथ बैठा तो वो सारा दिन ही उन्होंने बना दिया मेरा. आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो ना आप दोनों, व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि दीज एक्सपीरियंसेस कैन ओनली बी हैड इफ़ यू आउटसाइड द बबल. तो हम अब मैं जो है सबको लपेट लूँगा. हम जो बर्गर होते हैं ना DHA के, वी
ऑब्वियसली ये हमारे वालिदैन कोशिश करते हैं कि हमें अच्छी ज़िंदगी दें, ये उनकी एक कोशिश है और ये बहुत अच्छी काबिले तारीफ़ और मतलब यू नो एक अच्छी इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू. बट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज वी हैव अ वेरी protected upbringing, and which is good, alhamdulillah, it's protected, but then we are deprived of experiences of this sort, things, I right? guess. Because वही वाली आप वाली बात जो आपने बोला कि पेट्रोल में क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, people like me would never interact with people like that unless मजबूरी हो जाए. और उस मजबूरी को हमेशा, वही वाली बात है, उस मजबूरी को हमेशा एक हम बुरी चीज़ समझेंगे कि यार हमें मजबूरी हो गई, versus thinking कि this is just an opportunity to interact with another human being, you know. And that's both of those are powerful stories. But back to, so these are your inspirations. Who would you like to work with? कोई, you know, because like I've already mentioned Oj the band, they have a very interesting philosophy. There's brilliant stuff as far as music is concerned happening all around Pakistan, especially in Karachi, with the young stanners. हासन रहीम अब चला गया छोड़ के हमें, लेकिन वो भी हमारा ही है, हम हमेशा बोलते रहेंगे कराची का है. You know, all of these are brilliant people. Who would you like to, who do you think would be an interesting collaboration, interesting philosophically speaking? Like in Pakistan? In Pakistan, dude. एक मिनट, आप क्या इंटरनेशनल? मैं नहीं, मतलब क्या बात है भाई. मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ लोग पूछते हैं पाकिस्तान में, अगर शायद आदिल के कोई अलग हो, लेकिन पाकिस्तान में मैं पर्सनली मिकाल हसन सर के साथ, उनके साथ काम करना चाहूँगा, कोलैबोरेशन या उनके साथ काम करने का मौका. एक्चुअली वो बताते खुद, या रोहिल हयात सर हैं उनके साथ. That's interesting. क्या बोल रहे हो? मेरा ये क्या, स्टिल मैं कोई एक नाम नहीं लूँगा. हाँ, जो आए, जब मैं प्रोसेस में जाऊँगा वो चीज़ मुझे इंस्पायर करेगी सर. जब मैं बैठूंगा किसी भी शख्स के साथ, बी इट एनीवन, तो वो प्रोसेस उसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. इससे पहले मैं कोई एक नाम नहीं दे सकते हो. हर म्यूजिशियन सर मुनफरिद है. अब सज्जाद अली सर से भी सीख सकते हैं आप. बॉयज़ आए हैं नए नए, आपने यंगस्टर्स का नाम लिया, ये टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी और हैं लोग, दोस्त अहबाब हैं. तो मतलब कोई हर प्रोसेस अलग होगा. मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि कोई एक, हाँ मुझे सज्जाद अली सर ज़्यादा, क्योंकि मैं बचपन से, अगर एक नाम फिलहाल अभी कंसिडर किया जाए इस शहर में रहते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि सज्जाद अली. नहीं, बिल्कुल मैं उनका नाम लूँगा. Okay. So here's what's interesting, right? So one of the first songs of your guys is that I heard was यार दी घरोली और घूम चरखड़ा, नेस्कैफे बेसमेंट वाला. That is what we, हाँ वो हमने नेस्कैफे बेसमेंट में किया, लेकिन उससे पहले वो ब्रादरी ब्रॉडकास्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो कैटलॉग बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बेस्ड था. हाँ, पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेज, और जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी देसी थे सारे. हाँ, उसमें कोई बाहर का इलेक्ट्रॉनिक तुम्बा ये सब होंगे ना, तुम्बा वगैरह भी नहीं, जो रीजनल हमारे जो साउथ एशियन इंस्ट्रूमेंट्स है जितने भी पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, बैंजो, हारमोनियम, रबाब, फ्लूट, इस तरह की चीजें हैं. सो मतलब कोई प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं था, ना कीबोर्ड, गिटार, नथिंग वाज देयर. सो दैट वाज ऑल अकूस्टिक, ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहला जो हमारा ऑफिशियली रिकॉर्डेड और रिलीज गाना वो कोहो तलारा देश पंजाब दे था, जो मैंने कहा बलोची और पंजाबी का मिक्सचर था. और उसके बाद फिर हमने उसी प्रोजेक्ट में 4 गाने और भी किए थे उन्हीं दिनों. अब्दुल सत्तार रज़ी साहब पे था, एक W11 बस पे था बेस्ड. तो उस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने की. फिर उसके बाद जो है उसके बाद हमने सारे लैंग्वेजेस को लेके एक गाना था, वो बिल्कुल एक वो था. फिर उसके बाद नेस्कैफे बेसमेंट में हमने ऑडिशन दिया, वो भी हमारे एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा आई गेस, अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि हमने वेट किया, काफ़ी मेहनत की वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो उसके बाद बिगफुट का एक बलोची गज़ल, वो जो अभी काफ़ी मशहूर हुआ था, नॉमिनेट वगैरह हुआ था, वो गज़ल थी जो हमने खुद ही लेके आए थे फॉर द वेरी. मैंने सुनी नहीं वो बिगफुट के साथ हमने किया. So that was the song which we got nominated for in Lux Style Awards actually, and Lux, बोथ दोनों में वही. ब्रो अभी सुने ब्रो, एक मिनट, होगी स्पॉटिफाई पे, होगी कहाँ पे होगी? यूट्यूब पे ढूंढूं. स्पॉटिफाई पे भी है, स्पॉटिफाई पे भी आई गेस है, और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी. इट्स कॉल्ड तजन, TAZHN and then space TEEHAR. ये रे.
कॉपीराइट नहीं हो जाए है पॉडकास्ट बोल रहे हो भाई नहीं मैं सुन रहा हूँ लाइव रिएक्शन एक्चुअली. हाँ अभी आप क्या बोल रहे हो मुझे ट्रांसलेट भी करते जाओ. तजने तिहार एक्चुअली तानों को कहते हैं. तानों को फिक्रे जो कहते हैं. ये बेसिकली अपनी लवर को ये कह रहा है कि आप जो मुझे ताने जितने भी दे दें, आप जो मुझे कह लें, लेकिन जी आप मुझे जितने ताने दे दें, जो बुरा भला जो भी कहना है कह लें, लेकिन ये मेरे लिए एक फ़ख्र का मेरे लिए मोमेंट है. मैं ऐसी में जीता हूँ. अरे आप मुझे कहते हैं. अरे भाई तो इस कदर की जो है मोहब्बत की बात की जा रही है. देखिए हमारे बलूची बहुत बड़े पोइट हैं उस्ताद ज़हूर शाह हाशमी ने, और कंपोज ये एक्चुअली किए हैं मेरे वाले साहब के लेट दोस्त हैं इमाम बख्श मस्ताना. अच्छा. तो मेरे वाले साहब एक्चुअली जब इवेंट्स में जाते थे बैक देन, तो फिर हारमोनियम वगैरह कीबोर्ड वगैरह होता था वो वही बजाते थे. तो कंपोजिशन उनकी, और फर्स्ट टाइम इसको हम ले आए स्क्रीन पे. वाओ डूड. बिगफुट के साथ. दैट्स ब्यूटीफुल. एंड एक मिनट ये हमें फ़ोन आ रहा है. हमने फ़ोन उठाया क्यों? रिकॉर्डिंग. सॉरी. अच्छा चलो ठीक है. ये कौन बजा रहा है? ये हमद. वो कौन है? हमद खान. ये पॉलीमैथ है. दौरे जदीद ये फिल्म मेकर भी हैं हमद भाई. ही इज़ अ गिटारिस्ट, ही इज़ अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन. और ये और सोहेब लारी भाई, ये बिगफुट, ये दोनों बिगफुट को चला रहे होते हैं. बिगफुट म्यूजिक को कर रहे हैं. फेज 2 में इनका स्टूडियो, और सारा ओरिजिनल कंटेंट लाते हैं, कोई कवर शवर नहीं. अच्छा. सारा ओरिजिनल काम है. वाओ डूड. पावरफुल. बिगफुट. लेट्स गो. अच्छा चलें. अरे 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 भाई क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं सर? तो मनाशात न दर्द मनाशात, मतलब मुझे आप पे कुछ हो या आपको कुछ हो जाए तो वो मुझे रास नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता. और दर्द है वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते. तो ये बात कह रहे. तो अब इसके आगे कह रहे हैं कि तो मनी सा नपस दर्द नपस गिर मनी. आप ही मेरी सांस हैं और आप ही मेरी दर्दों का जो सामान है वो भी आप ही हैं. आप दर्द में साथ देने वाले वो भी आप ही हैं. अच्छा जी. ये आप लोग थोड़े अच्छा चलें. थोड़ा रोमांटिक नोयत का. Having said that, इसमें सूफी इंक्लिनेशन है? इसमें बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल नहीं है ना. तो मैं ये सही समझ, ये खातून के लिए है ना? जी बिल्कुल. या अगर तो वो इंटरप्रेट किस तरह आप करते हैं उस पे. हाँ. लेकिन जहाँ तक हमने सोच के जो हमने इंटरप्रेट करके गाया वो एक्चुअली ब्रो मैं सेवर से हूँ ब्रो. मैं इंटरप्रेट करने को तो कोई भी चीज़ सूफी हो जाएगी मेरे लिए, लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है. कैटेगोरिकली हाँ लेकिन सो दिस इज नाउ रोमांटिक नंबर. ठीक है. दिस वन इज रोमांटिक. तो हमने सांस नपस दर्द. वाह dude, this is fantastic. मैंने लाइक कर लिया, बाकी मैं बाद में देखूंगा. इसके लिरिक्स भी एक्चुअली आप YouTube पे इसमें हैं. अच्छा जी. तो you can understand the song as well. That's awesome dude. That's awesome. What do you plan on doing next? So obviously there's the short film.
obviously, right? You did also mention a studio. Yeah, actually एक चीज़ का हमें कीड़ा है, वो ये कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं हम. लाइक पिछले 3-4 सालों में शिफ्टिंग हमारी बहुत हुई हैं. उससे पहले कभी भी नहीं हुई है. 20 से 21 साल हम एक ही घर में रहे. लेकिन फिर उसके बाद चूंकि आप एक जगह से जब निकल गए तो फिर आप घूमते रहते हैं. लत लग जाती है. लत लग जाती है. मुझे तो तेरी लत लगी. तो फिर ये हुआ कि फिर हम जहाँ भी जाते थे, हर रूम को खुद से रेनोवेट करना है. अपना जो स्टूडियो है उसको पेंट करना है, चीज़ें डिज़ाइन करनी है, उसकी क्या क्या ऐड करना है. एस्थेटिक्स से बड़ा काम करते हैं. चूँकि हमने आर्ट स्कूल से पढ़ा हुआ है. विजुअल स्टडीज़ में हमने 1-1.5 साल तक हमने लकड़ियाँ भी काटी हैं, हमने मेटल पे भी काम किया है, पेंट सारी चीज़ें की हैं. तो उस चीज़ को हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं. अच्छा कुछ भी नहीं आता लेकिन वही करते रहते हैं. तो वही जहाँ जाते हैं अपना स्टूडियो बनाते हैं. और अभी जो है, अभी चूँकि हम एक और हमने जो है शिफ्टिंग की अल्हम्दुलिल्लाह. तो फिर जी, तो अभी हम वो लेकिन सिर्फ स्टूडियो के लिए हमने मख्तस किया वो जगह जो है, सिर्फ अपने स्टूडियो के लिए. Awesome, dude. और शूट करने के लिए. तो वहाँ जो है हमारा प्लान, वैसे स्टूडियो है, आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, हमने खुद ही किया. अभी जो है उस पर काम कर रहे हैं. और फिर अपना ओरिजिनल उस पर काम कर रहे हैं. पहला जो सही मानों में ओरिजिनल है वो पहला हमारा. क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली 31st से हम फ्री हो रहे हैं बिल्कुल. तो उसी का कुछ वेट भी कर रहे थे हम, क्योंकि नाउ विल बी फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, यू नो, असाइनमेंट्स एंड ऑल स्टफ. तो उस चीज़ पे ज़्यादा काम करने का और प्लान करने का मौका मिलेगा. अब मार्केट को आग लगानी है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह. तो नहीं लगानी एक्चुअली, बस पानी बहाना है. अपना स्प्रे करना है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. अल्लाह खैर करेगा. कंट्रीब्यूट करेंगे जिस तरह से भी कर सकते हैं सर. और जो अच्छा लगेगा वो करते हैं. That's fantastic, dude. That really is fantastic. But here's the other thing. The ability that I've seen with people from your generation, artists, singers, songwriters, videographers, is truly, it's brilliant, yes, but also terrifying for someone like me. Because just the rate at which people, for instance, Manu से मैं बात कर रहा था on the podcast only, and I was like, you know, ये सारे गाने जो हैं one after the other आप इतने खतरनाक फेंकते जा रहे हो फुल, मैं आपको पता है स्लैंग, आप जो है ये रिलीज करते जा रहे हो कैसे. He's like, bro, all of these were written in one summer. You know, like think about that for a minute. What? All of these one summer one summer में as in वो कुछ दिन थे, स्पैन था दिनों का, उसमें ये सारे मैंने लिख दिए थे. उसके बाद बस बनाना था. एंड आई थिंक ये भी एक बड़ा खूबसूरत वक्त है. ये बहुत खूबसूरत वक्त है कि आपके पास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इतनी अफोर्डेबल हैं कि अगर लिख लिया है तो फिर और अगर आप ज़ाहिर हुनर वगैरह होना चाहिए. बट द एबिलिटी टू रिकॉर्ड विल नॉट बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर यू इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से. तो it's exciting, man. What's the plan on the first one? किस चीज़ के बारे में? Well, first one जो हमारा है वो हमारी लाइफ का पहला गाना जो हमने लिखा है, सबसे पहला, वो हमने लिखा था कोई 2012 में, if I'm not wrong. 13 में. Actually हम कहीं ऑडिशन देने गए हुए थे. पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन थे. पाकिस्तान आइडल. तो उसके हम ऑडिशन देने गए थे. तो वहाँ से फिर हम जब सेलेक्ट, तो डेफिनेटली उसी वक्त हमें बता दिया था कि कोई सेलेक्ट नहीं हुआ. क्यों? ये अल्लाह बेहतर जाने से, वो एक अलग माजरा है. वो क्यों हुआ नहीं हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लेकिन फिर ये था कि वो काफ़ी स्ट्रेंज एक एक्सपीरियंस इस तरह से था कि बज़ाहिर हमें उदास होना चाहिए कि भाई हम सेलेक्ट नहीं हुए यार, क्या हुआ. तो उस दिन हम जो है, ये बीच लग्जरी होटल है यहाँ पे हुआ था, तो वहाँ से हम जो है ना पैदल निकल गए थे रास्ते में. वाह. और उस रास्ते में जो है ना, हम रास्ते में गाते गाते वहाँ हमने जो है पोइट्री की. और हम ताजुब की बात है कि हमें यूँ तो सैड होना चाहिए, मायूस होना चाहिए, लेकिन उस दिन पता नहीं वापसी में आते हुए हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एनर्जेटिक थे. पता नहीं क्या सीन है. तो उस पे हमने उस दिन हमने जो है गाना लिखा. पैदल आते हुए घर तक आते अच्छा खासा रास्ता है, बहुत काफ़ी लंबा रास्ता है, आपको तो पता होगा, बीच लग्जरी से लियारी के अंदर तक का. तो हम पैदल आते गए, पता नहीं चला, और उसी रास्ते में आते ये गाना हमने बनाया. तो वही गाना जो पहला गाना है, पहली कॉम्पोजिशन है, लिखी भी हमने, तो उसको सबसे पहले जो है. That's powerful, dude. I think ये जो आप बात बोल रहे हो ना, खुशी की, even though you should have been sad, you know, I think it has something to do with एक चीज़, आपको खौफ होता है एक चीज़ का, यार ये चीज़ अगर ये हो गई
तो क्या होगा, अगर हम हार गए तो क्या होगा. पर आई थिंक देयर इज इमेंस रिलीफ जो आपको पता पड़ता है कि हाँ हारेंगे भी तो कोई इशू नहीं है, जीतेंगे भी तो भी कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, यू नो, बस काम करते रहना है. आई थिंक वो जो बात होती है ना, बोलते हैं हरकत में बरकत. आई थिंक वो हरकत जब आप शुरू करते हो ना, तो ये उस चीज़ की एक्साइटमेंट है कि यार ये मेरा पर्पस है, मैंने ये करना है और करते चले जाना है. I think there's beauty there. In Balochi? No. उर्दू. उर्दू हम लिखते जो है बलोची में कम है. अच्छा. हम ज़्यादा जो है उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में ही, मतलब गानों की बात कर रहा हूँ. अच्छा, फिर फिल्म्स का थोड़ा डिफरेंट सीन है. फिल्म्स की कहानियाँ जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो वो जुबान, जब सोचने की जो जुबान होती है ना, वो बलोची होती है. That's something very unique. But okay, that's interesting. So Balochi was your first language? Yeah. हाँ. So is it fair for me to say कि आप सबसे ज़्यादा अगर फ्लुएंट, अगर आपकी फ्लुएंसी गेज की जाए, सबसे ज़्यादा फ्लुएंट आप हो गए बलोची में, है ना? What's interesting is I think in English now. Yeah. I think in English, right? And then I translate it to Urdu or Sindhi. Yeah. तो मेरा जो रिएक्शन होता है वो फंस जाता है बीच में, क्योंकि पता आ नहीं रहा होता. तो आपका, it's interesting that you write in Urdu. So then would it be fair to say that you think in Urdu? Or do you think in Balochi? अगर गानों की बात की जाए तो गाने हम जो है उर्दू में ही सोचते हैं उर्दू में. उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादा सुना उसी टाइप का वो ज़ुबान गानों में ज़्यादा सुनी है. हाँ. बलूची हमने सुना है डेफिनेटली, लेकिन कंपैरेटिवली कम सुना है बनिस्बत उर्दू के. हमने कम सुना है. तो ये अजीब सीन है, पता नहीं है क्या, लेकिन है नहीं. बिकॉज देखो, हियर्स द थिंग, राइट, आपका जो आर्ट है ना, देयर आर थियोरिस्ट्स दैट विल से कि आर्ट कैन नॉट बी envisioned independent of the audience. Right? So could it be कि आप audience को सोच रहे हो कि यार ये audience जो है ये उर्दू में सुनेगी, and you are thinking कि हम उर्दू में ही सोच लेते हैं. No. Never thought that. The first idea that comes into our mind is in Urdu actually. हाँ. वो उर्दू में आती है. गानों की बात करें. अब वो नहीं पता, वही बात की जाए, शायद वही बात हो कि हमने चीज़ सुनी, बलोची भी सुनी ऑब्वियसली, लेकिन बहुत डायलेक्ट्स हैं, लेकिन शायद उर्दू के ज़्यादा डायलेक्ट्स नहीं सुने, शायद ये हो सकता है. या सिंपल है तभी, क्योंकि देखो these older languages, Sindhi, Balochi, are very complicated, very complex. You know, compared to Urdu, English, these are simpler languages. Right, so it's easier to react in them, I suppose, क्योंकि इतनी आपके पास वो नहीं है, चॉइस नहीं है. चॉइस भी एक खतरनाक चीज़ हो जाती है ना. बहरहाल that's powerful, dude. अच्छा, शॉर्ट फिल्म किस चीज़ के बारे में? तो अभी जो थी फिल्म क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जो आपने बनानी अभी. अब वो एक्चुअली मेरा लियारी के बारे में, लेकिन उसमें मैंने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है लियारी के बारे में. हाँ. मतलब वो टिपिकल गैंग वॉर वाली कहानी नहीं है एक्चुअली. उसमें लव भी है, इसमें थोड़ा सा डार्क ह्यूमर भी है, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ बिट ऑफ वार वाली चीज़. लेकिन उसमें मैंने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को एक्सप्लोर करने की चीज़ की कि आप बेशक कहीं भी फंस जाएं, लेकिन आपने करनी तो वही चीज़ है. आप ये कांट वाले कैटेगरी, दैट्स ब्यूटीफुल. बिल्कुल, एक कॉन्सिक्वेंशियल एक वो भी हो सकता, और कैटेगोरिकल. तो ये था कि भाई अगर हम पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करें, अगर हम जो है ना कैटेगोरिकली चीज़ों को देखें, तो शायद हल कुछ और निकल के आएगा. अब अगर हम देख ही डेस्टिनेशन को रहे हैं, जर्नी को देख ही नहीं रहे, तो वो कुछ और सीन हो जाएगा. तो उसमें वो चीज़ मैंने थोड़ी एक्सप्लोर की है कि एक लड़का है, बेसिकली उसको लड़की से प्यार है, और जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाता है. वो उसको इन्फॉर्मर समझते हैं, सामने जो इलाके में जाता है तो सामने की जो गैंग होती है वो उसको इन्फॉर्मर समझते हैं कि ये कोई बात बताने जाता है. तो फिर वो घर में ट्रैप हो जाते हैं एक ऐसे शख्स के जो काफ़ी एक, क्या बोलेंगे स्लैंग में, तो अभी नहीं बोलूँगा उसको, बोल भी दो. काफ़ी खड़ूस कोई खड़ूस शख्स है उनके घर में. ये एंटागनिस्ट बेसिकली जो शुरू में इनिशियली जो एंटागनिस्ट होता है, जो गैंग का लीडर होता है वो, और वो अंकल, तीनों एक ही घर में ट्रैप्ड. और फिर वो किस तरह अपनी जो है आइडेंटिटीज़ को जो छुपाएंगे या किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, दैट दिस इज़ व्हाट माय फिल्म इज़ ऑल अबाउट. वाओ. और उसका जो है म्यूज़िक पे आसिम, माइन इज़ ऑन म्यूज़िक. एक्चुअली आइडिया ये है कि सोसाइटी आपसे बहुत सी चीज़ें कराना चाहती है, वो करवाती भी है, लेकिन एट द एंड
आपके अंदर जो चीज़ है वो निकल के आएगी. सो माई एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट ही इज़ तो अस्यूम इस तरह का कि वो रिलीजियस थोड़ा सा पायस है वो, लेकिन वो एक घराने मतलब म्यूज़िकल घराने क्लासिकल म्यूज़िकल घराने से ताल्लुक़ रखता है. लेकिन वो उसके फादर इतने ज़्यादा म्यूज़िक में हैं कि बचपन में सेपरेशन हो गई इनकी. फादर म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और मदर और इसको टाइम नहीं दिया बच्चे को. तो फिर एट द एंड ये होता है कि मदर इनके बीच में गुजर गई होती है. ये स्टोरी में नहीं, लेकिन ये एक्चुअली है, एग्जिस्ट करती है. तो एट द एंड जो है फादर जो है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में होते हैं और ये अलग रह रहे होते हैं इतने सालों से. तो फादर इनको बुलाते हैं आखिरी बार, क्योंकि फादर का कोई भी नहीं है, वो सिर्फ खुद हैं और बेटा अलग है. तो फादर इनको बुलाते हैं एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए. मतलब आखिरी ख्वाहिश उनकी ये है, ख्वाहिश भी आखिरी ये है कि मुझे एक राग सुनना है, फलाना राग. मतलब मरते मरते भी वो म्यूज़िक ही करते जा रहे हैं. तो बेटा चूँकि उसे नफ़रत है मौसीकी से, क्योंकि पायस है, रिलीजियस भी है, और वजह से ये लगती है कि भाई म्यूज़िक नहीं हमें बर्बाद किया, हमें अलग किया, मेरी वालिदा भी इसीलिए गुजर बसी. तो अब सारी जर्नी कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है. तो सारी जर्नी ये है कि अब उसे वो लाग ला के देना. तो वो कैसे ला के देगा, अब क्या होगा आगे, उसकी जो मसले मसाले आएंगे. तो ये सारी चीज़ें that's really powerful, dude, and that's so unconventional. और एट द एंड वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो खुद म्यूज़िक में रिलीफ वो हासिल करेगा, वो खुद म्यूज़िक को एक्सप्लोर करेगा. दैट्स द आइडिया. ये आपने स्पॉइलर दे दिया. कोई बात नहीं, मसला नहीं, अपलोड कर देंगे. हाँ, आप अपलोड करोगे, मैं तो देखूंगा. लेकिन सीन है कि फिलहाल हमने एनिमेटिक्स पे 2 सालों से एक्चुअली ऐसा हो रहा है, लास्ट ईयर और इस ईयर, कि KU में एनिमेटिक्स बनवा रहे हैं, शूट नहीं कर रहे हैं. वो कोविड की वजह से आई डोंट नो, शायद अगले साल सीन सेट हो जाए. लेकिन ये है कि एनिमेटिक्स जो है बिल्कुल रेडी है. So we are willing to shoot it. लेकिन we will definitely shoot it next year. Inshallah. That's fantastic, dude. Speaking of singing and rags, are you guys classically trained? I suppose I should have asked you that शुरू में, लेकिन मैंने नहीं पूछा. चलो, हम ट्रेंड प्रॉपरली तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने जितना भी सीखा है वो क्लासिकल, ईस्टर्न क्लासिकल में सीखा है. और म्यूज़िक जो है हमने वेस्टर्न थोड़ा वो इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से सीखा है. आसिम थोड़ा गिटार सीख रहा है और मैं कीस पे थोड़ा जो है, तो हमने वो थोड़ा वेस्टर्न वो राइटिंग है जो उसको भी देख रहे होते हैं. लेकिन क्लासिकली ट्रेंड मीनिंग आप किसी उस्ताद के पास गए हो? जी, बिल्कुल. हाँ, तो हमारा उस्ताद सर शाहजेब अली, पहले हम आर्ट्स काउंसिल में गए थे, तो ही वाज आवर टीचर देयर. और फिर उसके बाद उन्होंने अपना अलग जो है इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, तो फिर वहाँ हम जा रहे थे. फिर ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में जब लग गए, तो चूँकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कोई सुबह वाली कहानी नहीं है, क्या सुबह आफ्टरनून वाली कहानी नहीं है. आप सुबह गए तो आएंगे रात को ही घर पे. हाँ, क्योंकि काफ़ी एक्टिव सीन होता है और हमारे स्टूडियो क्लासेस होते हैं 4 घंटे 5 घंटे. तो उसी की वजह से हमारे वो चीज़ कंटिन्यू हो पा रही थी. स्पेसिफिक टाइम नहीं है कोई. तो ये हम क्लासिकली ट्रेन है. हमारे टीचर सर शाहजेब अली हैं, वो भी क्लासिकली ट्रेन. लेकिन एक चीज़ आपको भी शायद मेरे ख्याल में ये लगता होगा कि हम क्लासिकल सिंगर्स हैं. नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा. मैं पूछ रहा था क्योंकि ज़्यादातर जो जितने भी जो आर्टिकल्स वगैरह जितने भी हमारे बारे में जो आई हैं, तो दे मेंशन के वी आर क्लासिकल सिंगर्स. या फिर हमारे या कपड़ों को देख के बोलते हैं हिप हॉप. और अगर कुछ फॉर एग्जांपल कोई आलाप लगा ले तो लगा लिया तो क्लासिकल सिंगर. ऐसे कपड़े पहने तो हिप हॉप से. ब्रो सोचो, आप लोग किसी से तो हिप हॉप है, आप किसी मोल्ड में फिट ही नहीं हो रहे हो. सोचो आप, हाँ, आप यू गाइस शुड लीन इनटू ऑल ऑफ दोस. बिल्कुल रैपर वाले कपड़े पहन के आओ और आते ही ना आलती पालती मार के ज़मीन पे बैठ जाओ. लोग बोले ये क्या हो रहा है, और शुरू से ना वहाँ तो ये वो क्या रहा है. एक्चुअली किया हमने, मतलब ड्रेसिंग उसी तरह की है, लेकिन गा जो है ये चीज़ रहे. और वही कोई हमसे पूछता है कि आपका जॉनरा क्या है, तो हम वही कहते हैं कि जॉनरा हमारा कोई भी नहीं है. प्यार है हमारा जॉनरा. हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जॉनरा है, कभी रुका हुआ नहीं है. यहाँ से भी ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं. अपनी शख्सियत में अपनी शख्सियत में उस चीज़ को ऐड करते जा रहे हैं. म्यूजिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्चुअली, जो डिफरेंट म्यूजिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ब्रो दैट्स फैंटास्टिक. बट वही वाली बात है कि यू नीड, इंशाल्लाह अब अल्लाह के हुक्म से आगे जो आप ये फर्स्ट आपका सिंगल है और अल्लाह करेगा और भी बहुत सारे होंगे. नाउ यू नीड टू एस्टैब्लिश अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि भाई ये चीज़ जो है ना, देखो द प्रॉब्लम इज दैट्स अ लॉन्ग वाइंडिंग फिलोसफी. हाँ, ये मतलब किसी को आप स्नैपशॉट नहीं दे सकते हो कि भाई ये मेरी फिलोसफी है. लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, रैपर हो या नहीं हो, जवाब दो बात का. सही है ना. तो as soon as you develop that proof of concept, I think you'll be off to the races inshallah, अल्लाह के हुक्म से.
और फिर कामयाबी आपके पैर छुएगी और फिर आप जो है बोलोगे काजी भाई आप सही बोल रहे थे। मैं बोलूँगा यार मैं बस कभी गुरूर नहीं किया, मैं ऐसे बातें करता रहता हूँ। अल्लाह माफ़ करे ब्रो। But dude, this has been absolutely fantastic. I am so grateful that you guys came over. अपना एक मिनट, आपका इंस्टाग्राम जो है बलोच ट्विंस, इंस्टाग्राम बी इट यूट्यूब चैनल या फेसबुक बलोच ट्विंस, BALUCH बलोच ट्विंस। क्यों ऐसे ओ होता है ना वैसे? नहीं वैसे ओ बलोची में इट्स बलूची, इट्स नॉट बलोची, इट्स बलूच। बलूच या प्रोनाउंसिएशन में इट्स बलूच, बलूचिस्तान और बलूच, इट्स नॉट बलूच, इट्स नॉट बलोच। तो क्योंकि आसपास वाले लोग बलोच कहते हैं तो उसकी वजह से वो लिखते हैं, लेकिन वी राइट इट क्योंकि हमें लगता है कि बलूच है तो बलूच। हाँ, well with the interesting part even about that is कि जैसे I think पठान is a colonial term या पश्तून या one of those two is a colonial term, right? So similarly all of these pronunciations they're not taken from our language. ये pronunciations again तोहफा है आपके माजी का। तो बलोच ट्विंस ऑन इंस्टाग्राम, BALUCH ट्विंस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हम फोटोग्राफी वगैरह वो अपने प्राइवेट अकाउंट्स पर उसमें सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। हाँ, सिर्फ फोटोग्राफी अपनी शख्सियत को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और फ्रेम्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो भी कर दो क्या प्लग करने में, क्या है वो कौन से होते हैं? आदिल बलूच, आसिम बलूच, वो UCH। हाँ, आसिम बलूच। Dude, this is fantastic. You guys are brilliant. आप लोग जो है ना काम करते रहो ये वाला, and I think अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जल्द उरूज दिखाएगा इंशाल्लाह। And then whenever you guys want to come back, you come back. Sure sir, हमारे लायक भी कोई काम करना तो we always there for you. Bro, like to you to call. Yeah, we like to host you, invite करना चाहते हैं आप। कहाँ पे bro? लारी में आइए, घूमेंगे, चाय पिलाएंगे, वही वाली जिसकी हमने बात की। अगर तो आप पीते हैं तो ब्रो मैं पी लूँगा, चलो आप लोग बोलोगे तो, लेकिन आप लोग ये मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हो ना कि मैं बर्गर हूँ। कोई बात नहीं। जी बिल्कुल bro, I'd love to, I honestly would love to, and I think आप बस आपके लायक काम ये है कि आप अपना काम करते रहो और and I think everything will be good, dude. Yeah, inshallah. Thank you so much for having us here. Of course. The Baloch twins, Qazi Akbar. Assalamu alaikum.